with their contributions. So guys, if you are new to this channel, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस मिलती रहे. तो गाइज वी वुड कवर ऑल द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. तो प्रोबेबली अगली वीडियो के बाद ओके इन दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और देन वी वुड मूव टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सो टॉपिक वाइज टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वी वुड कवर ऑल द टॉपिक्स और सिलेबस ऑफ यूपीएससी. सो गाइज लेट्स स्टार्ट मगध एम्पायर. So guys, if you talk about the formal founder of the empire, then Jarasandha and Brihadratha. Okay, Brihadratha. These are the two people that we can say these are the formal founder. Okay, these are the formal founder. I'm saying founder. These are the founder of Magad Empire. So the very first dynasty that ruled over Magad is Haryanka dynasty. And here also we would discuss only important rulers and their contributions that are only important for UPSC. Okay, so let's see Haryanka dynasty, the first important and powerful dynasty in Magadha. Okay, Magad की जो है तो first important powerful dynasty that is Haryanka dynasty. So the first man or ruler of Haryanka dynasty was Bimbisara. Okay, this is his time period. 558 BC to 491 BC. Okay, so this was or he was son of Bhatia. He ruled over Magad from 544 BC to 493 BC. Okay, then he was contemporary and follower of Buddha and was also said admirer of महावीरा. तो ऐसा भी कहा जाता है कि महावीरा और बुद्धा कंटेम्पोररी है. अब ये बुद्धा को कंटेम्पोररी है इन द सेंस ही इज ऑल्सो कंटेम्पोररी टू महावीरा. तो दोनों भी कंटेम्पोररी थे. ओके, ये तीनों भी पीपल जो तो एक दूसरे को कंटेम्पोररी थे उस समय में. सो हिज कैपिटल वाज ग्रीवराजा मीन्स राजगीर. ओके, राजगीर उनकी कैपिटल थी एंड ही वाज आल्सो नोन एज श्रेनिया. Then he was the first king to have standing army. Okay, standing army in the sense ki exact. Okay, immediate army. So he was the first king who had immediate army. If you want to fight right now, then he had army that he can stand to fight at the moment or at point of time. He started the practice of using matrimonial alliances. Okay, तो इसकी theory क्या थी? Matrimonial alliances. ये आसपास के kingdom की जो लेडीज से मैरिज कर लेता था और उसकी स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पोजीशन. ओके, तो उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लेता था. सो इन दिस केस इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस he had married 3 ladies. Okay, he had 3 wives. So first is Kosla Devi. She was king of Kosla's daughter and sister of Prasenjit. Okay, Prasenjit की sister थी और जो कोसला king था उसकी daughter. Then second lady was Chellana. Okay, daughter of Lichhavi chief of Vaishali. Okay, Vaishali chief की ये daughter थी. And then third was Khema. She was daughter of king of Modra. Okay, which is in Punjab. So this was is kind of policy that is matrimonial policy. तो शादी बना लेता था आसपास के स्टेट की लेडियों से और अपनी जो है तो ताकत बढ़ा लेता था. ओके, सो ससुर तो मदद करेंगे ही ना, तो इस कुछ हिसाब से. Then he followed a policy of conquest and expansion also. तो इसके अलावा ये conquest भी करता था, वो war fight. Okay, तो ये भी चलता था. most notable conquest by बिम्बिसारा was that of अंगा. तो अंग उसने annex कर लिया था. Okay, this is the territory he had owned. He had an effective and excellent administrative system उस समय थी which was divided. Okay, तो executive, military and judicial. तो कुछ this kind of no today we have executive, judiciary then legislative. तो कुछ इस तरह से. Okay, कोई कायदा बनाता है, कोई follow करता है और कोई follow करने लगाता है, even कोई judge करता है उसे. So this kind of system was also available at that point of time. The second important ruler of this dynasty was Ajatsatru. Okay, he was son of Bimbisara and Chellana. Okay, this was his second wife Chellana. Third, and then Hema was third.
So he killed his father, means he killed Bimbisar and became ruler. And later on it is said that he embraced Buddhism. ऐसा भी बताया जाता है कि पहले ये महावीरा यानी जैनिज्म को फेवर करता था. Okay, this अजातशत्रु. But later on he moved toward, okay, तो बुद्धिज्म की ओर वो बढ़ गया, जिसमें उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह जस्ट आफ्टर दैट ऑफ बुद्धा इन 483 बीसी, तो वहां पे उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था. देन थर्ड रूलर दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट वी हैव टेकन, ओके, सो उदयन इज ऑल्सो लिटल बिट इम्पोर्टेंट. He was son of Ajatasatru and he shifted his capital to Patliputra in Patna. Okay, तो पटना को यानी पाटलिपुत्रा को which was the very जो तो एकदम अच्छी जगह थी जहाँ से वो आसानी से आसानी से रूल कर सके. So it was a kind of center where they had rivers and all other things where they can move fast everywhere. तो वहां से ज्यादा उनको आसान पड़ता था रूल करने में. He was the last major हरियाणा का ruler and succeeded by three kings, Aniruddha, Manda and Nagadasaka. So these were the ruler that came after him. Then again there was important dynasty that ruled over this Magadhan empire, that was Sisunga dynasty. So according to Sri Lankan chronicles, the people of Magad revolted during the region of Nagadasaka and placed an Amatya minister named Susunga as the king. तो शायद there might be happened something that was not good फॉर द पीपल. तो पीपल ने उसके खिलाफ, ओके, लास्ट रूलर था ना नागादास का, तो उसके खिलाफ रिवोल्ट किया और उसे राजा के पद से हटा के उसका उस वक्त का नागादास का जो मिनिस्टर था, दैट हिज नेम वाज सिसु नागा. ओके, सिसु नागा जो था, तो ये सिसु नागा किंग उन्होंने सिसु नागो को किंग बना दिया. सो देयरफॉर देयर इज सिसुंगा dynasty, Sisunaga dynasty, you can even say Sisunga or say Sisunaga, no problem. Okay, तो उसको रूलर बना दिया उस समय में. Then later on, let's say Sisunga, he was the first viceroy of Kasi. तो पहले viceroy of Kasi अमात्य था ना उस समय. तो he then became king of Magad, जिसको people ने king बनाया, and his capital as Grivaraj. Okay, तो राजगीर. He annexed Avanti and brought an end to the long rivalry between Magad and Avanti, and later he shifted capital to Vaishali. Okay, Vaishali को उसने capital ले गया. Then after him, the king that his name was Kalasoka. He came to power. He was son of Sisunaga, and Kalasoka shifted capital again to Patliputra. He conducted the second Buddhist council at Vaishali. तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो भी बुद्धिज्म को फेवर करता था. देयरफॉर ही जैसे उसने ये ऑर्गेनाइज की थी और कंडक्ट की थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली. ही वाज किल्ड इन पैलेस रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट द नंदा डायनेस्टी टू द थ्रोन. अब लेटर ऑन, तो इसके जाने के बाद देन थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट केम टू रूल, तो वो थी नंदा डायनेस्टी. सो the first ruler of Nanda dynasty was Mahapadma Nanda. So he is called the first historical emperor of India. तो इसे ऐसा क्यों कहा गया? He murdered कालासोका to become the king. ओके, इसके पहले जो है तो कालासोका किंग था. अच्छा समझे, तो उसने कालासोका को मर्डर किया एंड देन केम टू पावर. हिज ओरिजिन इज नॉट क्लियर. ओके, अभी तक तो कोई पुराण के अलग अलग रेफरेंसेस अलग अलग इन्फो देते हैं उसके बारे में. तो सम सेज दैट ही वाज फ्रॉम शुद्रा वुमन. ओके, तो शुद्रा वुमन का वो बेटा है. एज पर सम जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक राइटर कर्टियस, ओके, ही वाज द सन ऑफ बार्बर एंड कर्टिसन. तो ऐसे अलग अलग रेफरेंस है, बट वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल. ओके, लेट इट बी. हिज रीजन लास्टेड फॉर 28 years. ओके, 28 years के लिए पावर में था, फ्रॉम 367 BC to 338 BC. He is called सर्व क्षत्रियांका. सर्व क्षत्रियांका मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास एंड एकरात. तो इसने क्या किया था? नाउ द फर्स्ट
जो तो एक कन्वेंशन टाइप था, ओके। तो सब क्षत्रिय जो पीपल होते थे तो रूलर होते थे, बट दिस 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 इसने क्या किया, इसने क्षत्रिय को ही खत्म कर दिया, ओके। क्षत्रिय पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनका रूल ही खत्म कर दिया। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सर्व क्षत्रिय यंत का, ओके। यंत अंत, ओके, अंत का, सर्व क्षत्रिय अंत का, ऐसा आप इसको पढ़िए, तब सारे क्षत्रिय इसने अंत कर दिए। द एम्पायर ग्रू अंडर हिज रीजन, इट रन फ्रॉम कुरु कंट्री इन द नॉर्थ टू द गोदावरी वैली इन द साउथ, और फिर नॉर्थ से साउथ तक जो है तो इसका एक्सपेंशन हुआ, एंड फ्रॉम मगध इन द ईस्ट टू नर्मदा ऑन द west. So this kind of his expansion of his region, he conquered many kingdoms including कलिंगा को भी उसने अपने जो है तो अंडर में ले लिया था। Then second important ruler was there धनानंदा। तो धनानंदा was last ruler and he is referred as अग्रमेस और ज़ैंड्रमेस इन ग्रीक टेक्स्ट। तो ग्रीक टेक्स्ट इसे दो नाम देते हैं, ओके, अग्रमेस और ज़ैंड्रमेस। तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड northwestern India during his region, and he could not proceed towards the Gangetic plains because of his army refusal. तो अलेक्जेंडर इस समय में जो है तो मौर्यन एम्पायर पर, यू कैन से मगधन एम्पायर, ओके, नॉट मौर्यन, सॉरी फॉर दैट, मगधन एम्पायर इसके रीजन में जो तो अटैक करने को आया था। लेकिन यू नो दिस नॉर्दर्न रीजन इज काइंड ऑफ हिली एंड अलोंग विथ इट इज काइंड ऑफ यू नो जो है तो व्हाट वी कैन से, तो डिजर्ट, ओके, डिजर्ट, ये तो कुछ डिजर्ट टाइप है। तो देयरफॉर दिस आर्मी, और इसके पहले भी इवन ये तो बहुत साल से लड़ रहा था ना इस हमारे एरिया में, ओके। तो अफगानिस्तान इस एरिया में कुछ बहुत सालों से इसकी जो है तो अलेक्जेंडर की इन्वेजन शुरू थी। तो आर्मी भी कुछ ना कुछ तरह से बोर हो गई थी कि यार कब तक लड़े यार, अभी तो चलना भी मुश्किल हो गया था। सो देयरफॉर आर्मी ने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो फिर उसे जो है तो वापिस जाना पड़ा, ओके। ही कुड नॉट फाइट or could not proceed towards the Gangetic plains. He inherited a huge empire from his father. He possessed a standing army of 2 lakh infantry, 20,000 cavalry, 3,000 elephants, and 2,000 chariots. He became a powerful ruler because of this. और इतनी सब पावर होने के बाद how he cannot become पावरफुल, ओके। तो इतना सारा होने के बाद ये इन्वेजन्स में कामयाब होता रहा अच्छी तरह से। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द 8 or 9 sons of महापद्मनंदा, okay. He became unpopular with his subjects owing to an oppressive way of extorting taxes. तो इसने बहुत सारे taxes लगाए थे, therefore he was becoming unpopular. Also his Shudra origin and also an anti-Kshatriya policy lead to a large number of enemies. तो इसी के साथ, ओके, टैक्स की भी बात थी, बट अब टैक्स के बाद भी ये इसकी जो है तो शूद्रा ओरिजिन, ओके, शूद्रा इतनी लोवेस्ट कास्ट का आदमी आके हमारे ऊपर रूल करेगा, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग पीपल हैड, तो वो सह नहीं पाए, ओके, दे कुडंट बियर, देयरफॉर दे स्टार्टेड टू अपोज दिस व्हाट वी कैन से दिस किंग, ओके। तो इसको अपोजिट करना उन्होंने शुरू कर दिया। एवं ये इसकी पॉलिसी जो थी एंटी क्षत्रिय, ओके। तो मैंने आपको अभी यहाँ बताया जैसे कि ही वाज जो है तो इनकी पॉलिसी यही थी, ओके। तो क्षत्रिय, ये जो अब हमने देखा ना, तो फर्स्ट रूलर, ओके, तो पद्मनंदा, तो दे वेर द काइंड ऑफ पीपल दैट वेर अपोजिट टू क्षत्रिय, ओके। क्षत्रिय सर्वनाश, तो क्षत्रिय पीपल जो स्टेट में थे तो वो भी इसे अपोजिट कर रहे थे क्योंकि ये उनके खिलाफ चढ़ रहे थे, ये नंदा डायनेस्टी। सो देयर वर नंबर ऑफ इनेमीज, उसके बहुत सारे इनेमीज बन गए थे, एंड फाइनली ही वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य along with चाणक्य, which lead to foundation of Mauryan Empire in मगधा। तो इसके बाद यहाँ फिर आ गया मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का आई होप वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो about Magad Empire, Maurya Empire. Okay, so this was the Magad Empire. As you know, the चालुक्य तो बहुत चालाक था, नाम से ही समझ में आता है, चाणक्य was a चालाक person, okay, kind of। तो उसने इसकी मदद की चंद्रगुप्त मौर्य की, एंड देन इसके बाद इन्होंने उसे ओवरथ्रोन कर दिया और फिर जो है तो पावर में आ गए। सो गाइज, दिस वाज द ऑल द थिंग्स अबाउट मगध एम्पायर, एंड आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, ओके। तो अभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क विदाउट हेजिस्टिंग, ओके।
तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे ईमेल कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर। ओके, हमारा फेसबुक पेज भी यहाँ पर दिया गया है, अबाउट चैनल सेक्शन में देखिए, तो वहाँ भी आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं पेज पर। इवन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू कैन मैसेज मी, नो प्रॉब्लम। तो आप मुझे किधर भी आपकी प्रॉब्लम बता सकते हो। आई हैव कनेक्टेड ऑल द साइट्स टू माई चैनल। तो आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम, वी वुड क्लेरिफाई योर प्रॉब्लम्स। एंड अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और इफ यू थिंक दैट कंटेंट हैव काइंड ऑफ पावर, ओके, तो कंटेंट में दम है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। ओके, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है इट इज वर्दी ऑफ शेयर, तो हर उस आदमी से शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।